کچھ کہنا چاہیں گے کن کو؟ ہماری عوام کو 23 مارچ کے حوالے سے؟ وی جسٹ نیڈ ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کا میسج تھا کیا. کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد پورا. میں یہ کہنا چاہوں گی 23 مارچ کے حوالے سے کہ تمام لوگوں سے میں اپیل کرتی ہوں کہ امن جو ہے ہمارے ملک میں ہونا چاہیے. ٹاکسک چیزوں سے پرہیز کریں اور ایجوکیشن حاصل کریں، اور پلیز ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ وہ بھی اچھے ادارے بنائیں جہاں پہ پالیٹکس نہ ہو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان نرگس میمن. آج 23 مارچ کے حوالے سے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 23 مارچ کو قرارداد منظور ہوئی، اس میں مسلمانوں کے لیے الگ ایک ملک کا مطالبہ کیا گیا جو کہ منظور ہوا، جہاں پہ مسلمان اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں، ان کے رہن سہن کے حساب سے وہ اپنی زندگی گزار سکیں. اس کے علاوہ مسلمانوں کی ایک ایسی زندگی ہونی چاہیے تھی جہاں پہ وہ ایک خود مختار ہوں، اپنے فیصلے میں، اپنے بیانات میں، اپنے ملک میں، اپنے رہن سہن میں، ہر طرح سے وہ خود مختار اور آزاد ہوں. تو آج لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کہ 23 مارچ کیا ہے، 23 مارچ کون سا ایسا دن ہے جہاں پہ کون سی قرارداد منظور ہوئی، کون سے دن ہوئی اور کس طرح سے ہوئی، کس جگہ پر ہوئی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اپنا انٹروڈکشن کروائیے. میرا نام ایمان ہے اور میں ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی اسٹوڈنٹ ہوں. کیا سمجھتی ہیں 23 مارچ کے حوالے سے 23 مارچ ہے کیا؟ 23 مارچ کو پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تھی. کیا منظور ہوا تھا اس قرارداد؟ کہ پاکستان قیام وجود میں آئے گا 14 اگست کو. کیا سمجھتے ہیں کیا ہے 23 مارچ؟ 23 مارچ ریزولوشن آف پاکستان پاس ہوا تھا لاہور میں، اس کے حوالے سے منایا جاتا ہے. کیا کون سی اس میں قرارداد منظور ہوئی تھی؟ آزاد پاکستان 1940 میں. تو آپ سمجھتے ہیں اس قرارداد کے تحت آج ہم آزاد لائف گزار رہے ہیں یا کچھ ایسی ریسٹرکشنز؟ بالکل نہیں گزار رہے ہیں. جو سویلین دور تھا ہی جس میں یہ قرارداد پاس ہوئی، اس کو انہوں نے فوجی ایونٹ بنا دیا. 23 مارچ کو یہ پریڈ ہوتی ہے جس کا کہیں سے کہیں تک کوئی پاکستان سے تعلق نہیں تھا. یہ مجھے کہنا. آپ کا نام؟ حمیدہ گھانگرو. مجھے بتائیں گے 23 مارچ کے حوالے سے کہ 23 مارچ ہے کیا؟ 23 مارچ کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی 1940 میں، اور اس کے بنیاد پہ جو منشور آئین بنا، اور اس کے بعد پھر جو 1947 میں پاکستان بنا. 23 مارچ دراصل 1940 میں جو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی وہ اس قرارداد میں کون سی ایسی بات منظور ہوئی تھی؟ کچھ بتانا چاہیں گی؟ کون سی ایسی ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے منظور؟ جی دیکھیے، ویسے میں اس بات کو نہیں مانتی ہوں، مگر دو قومی نظریے کے بنیاد پہ جو پاکستان تعمیر ہوا، بنا پاکستان، تو اس میں کہ مسلمانوں کی ایک الگ مملکت ہوگی جہاں پہ وہ آزادی سے، خود مختاری سے رہ سکیں گے، اور جو ہے وہ ان کو اظہار رائے کی آزادی ہوگی ہر طرح سے. اور میں اس کو یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی کوئی علیحدگی ہوئی تھی. یہ تو برِ صغیر کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا. دراصل اگر 23 مارچ کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہتی ہیں تو ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی، ہے نا. ہمارا جھگڑا کوئی ہندوؤں سے نہیں تھا، مگر انگریزوں سے جھگڑا تھا. اور پھر اس قرارداد پاکستان میں بھی یہ طے ہوا کہ لہٰذا ہمیں جو ہے برِ صغیر کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے، کہ مسلمانوں کی ریاست الگ ہوگی، اور جہاں اکثریت میں مسلمان ہوں گے وہاں مسلمانوں کی ریاست ہوگی، اور جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہوگی وہاں ہندو ہوں گے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو ایک مشرقی پاکستان تھا اور ایک مغربی پاکستان تھا، جو بعد میں جا کے اور پھر وہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی صورت اختیار کر گیا. تو ویسے تو اگر دیکھا جائے تو قرارداد پاکستان میں جو اس کی پوائنٹس جو ہیں وہ تو بہت بہتر ہیں، مگر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہے. عبدالرحیم صاحب یہ بتائیں گے 23 مارچ کیا ہے؟ دراصل 23 مارچ ایسا ہے کہ ہمارے یہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، قائد اعظم، اس خوشی میں ہم لوگ یہ دن مناتے ہیں. اس قرارداد میں کیا منظور ہوا تھا؟ پاکستان بننا منظور ہوا تھا. اچھا، تو اس میں آزادی کے حوالے سے بھی ہوئی تھی کہ مسلمان اپنی ایک الگ رہن سہن کی طرح زندگی گزاریں گے. تو کس حد تک سمجھتے ہیں کہ ہم کس حد تک آزاد ہیں؟ سر دیکھیں، اگر آپ اس بات کو لیں گی نا تو ہم بالکل بھی آزاد نہیں ہیں. ہم سیاستدانوں کے غلام ہو کے رہ گئے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کو جو تباہ کرنے والے ہیں یہ سیاستدان ہیں. آج ہم پستی میں ہیں، ورنہ دنیا میں ہمارا ایک ملک دنیا کے
ऊंचे दर्जे पे होता, जैसे अमेरिका हुआ, फलाना हुआ, इस टाइप के हम ऊंचे दर्जे पे होते। लेकिन हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं ना, चोर और लुटेरे, समझे, वो हमारे मुल्क पे तकरीबन कोई अयूब खान साहब के मरने के बाद, अरे बल्कि मरने के बाद क्या, इक़्तिदार छोड़ने के बाद, उन्होंने जब अपना इक़्तिदार छोड़ा उसके बाद ये लोग इस पर काबिज़ हैं, जब से ये लूटा मारी चल रही है। तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, आवाम को? क्योंकि कहा यह जाता है कि जैसी आवाम होगी वैसे आप पे हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। बात ये नहीं है, ये मिसाल किसी और ज़माने में कही गई थी, ये कब्ल तारीख़, उस ज़माने में बादशाहों के जुल्म सितम तो हर ज़माने में रहे, राजाओं के, महाराजाओं के, बादशाहों के। आप तारीख़ उठाएंगे तो आपको ये पता चलेगा ये हमेशा से जालिम रहे। इनमें बहुत कम जो खलीफा या बादशाह हैं जो नेक दिल और आवाम परवर हुए, जो आवाम का बड़ा ख्याल रखते थे। लेकिन अब जो सिलसिला है, अब इस बात को मैं नहीं मानता कि जैसे आवाम वैसे हुक्मरान। आवाम तो अच्छा समझ के सियासतदान को लाती है, आवाम को अच्छा समझ के आवाम उसको सियासतदान को अच्छा समझ के लाती है। अब वो इक़्तिदार पे बैठने के बाद वो लुटेरे बन जाएं तो उसमें हमारा क्या कसूर है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? वहाज। वहाज साहब, क्या समझते हैं 23 मार्च कब मंजूर हुई, क्यों मंजूर हुई और वो मंजूर होने के क्या मकासद थे? 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई थी लाहौर में। बहुत बड़ा पीपल का पेड़ मशहूर है वहाँ पर, उसके नीचे हुई थी। अब तो खैर नहीं, अब तो मीनार पाकिस्तान बन गया है। मकसद ये था कि पाकिस्तान बनाने की एक तहरीक थी वो। उस तहरीक में मुसलमानों की आज़ादी के बारे में भी कुछ बात हुई थी, कुछ करारदाद मंजूर हुई थी, क्या हुई थी? मुख्तलिफ करारदादें, ये तो ज़रूर थी लाजमी कि अपना एक मुल्क होगा, इस्लामी उसमें कवानीन होंगे सारे, मेन तो यही था जिसके लिए। किस हद तक मुतमईन है कि हम वाकई एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं या हम ग़ुलाम हैं? नहीं, बिल्कुल हम आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा। इसलिए कि मैं काफ़ी दुनिया में बाहर भी गया हूँ, लेकिन जो कहते हैं ना ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट, तो अपने मुल्क की बात हो रहा है, अपने मुल्क की मिट्टी की बात ही हो रहा है जी। कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे हमारी न्यू जनरेशन को 23 मार्च के हवाले से? यही देंगे, अपने मुल्क की खिदमत करें, अपने मेहनत करें मुल्क के अंदर, अपने मुल्क को अच्छा संवारें, यही सबसे बड़ी बात है। हमारा मुल्क बहुत अच्छा मुल्क है। दुनिया, अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को हर चीज़ दी है, समंदर बेहतरीन, बेहतरीन मेहनत लोग, ज़राअत, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? शाह खालिद। खालिद साहब, ये बताइए कि 23 मार्च क्या है और कब मंजूर हुई और उसमें कौन सी करारदाद? ये 23 मार्च 1940 को करारदाद मंजूर हुई और ये पाकिस्तान के लिए थी। 23 मार्च 1940 को जो है ना करारदाद मंजूर हुई, कायद-ए-आज़म ने ये मंजूर करवाई थी मिंटो पार्क लाहौर में। इस करारदाद में कौन सी बातें, कौन सी ऐसे चीज़ें थी जो मंजूर की गई थी? ये तो मुझे याद नहीं है कि चीज़ें क्या थी, लेकिन ये है कि मुल्क के हवाले से थी, पाकिस्तान के हवाले से। आई थिंक नहीं, आई एम श्योर कि पाकिस्तान में मुसलमानों के रहन सहन के हवाले से उनको एक अलग कौमियत देने के हवाले से बात हुई थी। एग्जैक्टली। तो क्या समझते हैं कि हम आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं या अभी तक हम ग़ुलामी में हैं? नहीं, हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निकले हैं तो अपनों की ग़ुलामी में आ गए हैं। हम अभी भी ग़ुलामी हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। वडेरों की उसकी ग़ुलामी में आ गए हैं, फिर चौधरियों की ग़ुलामी में आ गए हैं। बस इसी तरह चल रहा है। हम आज भी ग़ुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हुए। कुछ कहना चाहेंगे हमारी आवाम को हमारे चैनल के तवस्सुस से? बस अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखें, डिसिप्लिन से चलें, कानून की पासदारी करें। बहुत ज़बरदस्त है ये, इंशाल्लाह मुल्क बेहतरी की तरफ आएगा। इसे क्या जानते हैं, क्या बताना चाहेंगे? 23 मार्च जो है ये करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी लाहौर में, जहाँ पर इस वक्त वो मीनार पाकिस्तान है। तो यहाँ पर उस वक्त करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1944 को तो वो मंजूर हुई थी, जिसको बाद में लेटर ऑन फिर वो 1944 को करारदाद पाकिस्तान जी। अच्छा, इस करारदाद में कौन सी बातें मंजूर हुई थी? इसमें ये पाकिस्तान के लादा मतलब है कि वो दो नेशन का जो नज़रिया है उसको हाईलाइट किया गया था। तो दो कौमी नज़रिया जो है उसको हाईलाइट किया गया था और एक अलग मुल्क की मतलब डिमांड की गई थी मुसलमानों के लिए, जहाँ पर मुसलमान जो हैं वो आज़ादी के साथ अपना वो रहन सहन जो है। 2021 चल रहा है, क्या समझते हैं कि हम आज़ाद हैं? नहीं, हम आज़ाद तो नहीं हैं बिल्कुल। हम तो ऐसे मफलूज हैं कि हम
टोटली वो गुलामाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे जहन ऐसे गुलाम हैं कि वो हम सोच भी नहीं सकते। आज़ादी का तो अभी हम सोच भी नहीं सकते, कम से कम अगले 200 साल तक तो मैं पर उम्मीद नहीं हूँ। आज़ादी के अलावा आपको नहीं लगता कि हम अपने हक के बारे में भी नहीं कह सकते? कुछ नहीं कह सकते, हम खामोश हैं। कौम खामोश है, कौम हक की आवाज़ बुलंद ही नहीं करती है, और खामोशी जो है ये जुर्म है। आप समझते हैं कि इस खामोशी से हमें अपना मुकाम मिल जाएगा? जो करारदाद मंजूर हुई थी हम उस पर पूरा उतर रहे हैं। ये खुदाई कवानीन के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जो जितनी मेहनत करता है उतना उसको सिला दिया जाता है। तो आपके वो अल्लामा इकबाल का शेर भी है कि जब तक आप खुद नहीं अपनी हालत को बदलेंगे, अल्लाह ताला भी आपकी हालत नहीं बदलेगा, और अभी हम इसमें बहुत दूर हैं। जी, तो नाजरीन आप सुन रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग अपने अपने बयानात दे रहे हैं कि करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई थी, क्या वाकई हम आज़ाद हैं या हम ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके अलावा वो मुख्तलिफ एजुकेशन के हवाले से अपनी राय दे रहे हैं। तो नरगिस मेमन आपकी मेज़बान के साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तसद्दुक हुसैन। तसद्दुक हुसैन। क्या समझते हैं 23 मार्च क्या है? 23 मार्च बेसिकली यौम करारदाद पाकिस्तान है। जब ये पाकिस्तान को बनाने के लिए लोगों ने मुसलमानों ने इकट्ठे होकर कायद आज़म की सरबराही में अहद किया था कि हम एक इस्लामी फ़लाही रियासत बनाएंगे। तो यहाँ से पाकिस्तान का सफ़र शुरू हुआ था 23 मार्च से, जो कि 14 अगस्त 1947 को मुकम्मल हुआ था एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। क्या समझते हैं कि हम कम्प्लीटली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं पाकिस्तानी में, पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कोशिश। कुछ कहना चाहेंगे किनको? हमारी आवाम को 23 मार्च के हवाले से? वी जस्ट नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान का मैसेज था क्या। जब हम लोग पाकिस्तान के मैसेज को अच्छी तरह समझ लेंगे देन आई थिंक हम लोग उस पर अमल भी करना शुरू कर देंगे। मैं आपसे 23 मार्च के हवाले से पूछना चाहूँगी कि 23 मार्च है क्या? पहली बात तो ये कि ये जो आपका चैनल है ना, वो मेरी कम्युनिटी का चैनल है। आई एम ए मेमन, और मेमन्स ने इस पाकिस्तान को बनाने में बहुत बड़ा हिस्सा लिया। 23 मार्च को कायद आज़म के हुक्म पर, उनके फरमान पर हम सब काठियावाड़ से इधर आ गए थे और इस पाकिस्तान को अपना वतन बनाया। हम यानी इस ये जो नस्ल है ये पाकिस्तान में पैदा हुई। पाकिस्तान हमारी ज़िंदगी है, पाकिस्तान हमारा ईमान है, पाकिस्तान हमारे लिए मोहब्बतों की वतन है। ये सरज़मीन जो है उसने हमें बहुत कुछ दिया है। हम सब का फ़र्ज़ है कि हम इसको, जो कर्ज़ इसने हमें दिया है, उस कर्ज़ को अदा करें। जी सर, क्या समझते हैं कि मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए क्या इक़दामात उठाने चाहिए? मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी नौजवान नस्ल और हमारी नई नस्ल तालीम की तरफ जाए, उसको तालीम की आसानियाँ हों। रोज़गार के अंदर ये जो डिसबैलेंस है वो बहुत ज़रूरी है कि उसे ख़त्म किया जाए। गरीबों के बच्चों को भी, तालिब इल्मों को भी तालीम अच्छी दी जाए और उनके लिए रोज़गार फराहम किए जाएँ, और उसके साथ साथ वो हालात पैदा किए जाएँ कि आला तालीम का जो मेयार है उसे बुलंदतर किया जाए, और असातिज़ा के एहतराम करते हुए तलबा और तालिबात जो हैं वो हुसूल इल्म में मेहनत करें। दूसरी बात, हमें फ़ुज़ूल ख़र्चियों से बचना चाहिए, हमें नेक इंसान बनना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था वो मकसद पूरा हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ज़बरदस्त। सर आपका नाम? सोहबत बुलडो। जी। 23 मार्च के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? 23 मार्च शानदार दिन है पाकिस्तान के हवाले से भी और इस रीजन के तमाम लोगों के हवाले से। इस दिन हमने फ़ैसला किया कि इस रीजन के तमाम लोग एक साथ रहेंगे, लेकिन किस बुनियाद पर कि एक दूसरे का बायमी एहतराम होगा, तमाम खितों का एहतराम होगा। उस बुनियाद पर पाकिस्तान वजूद में आया। आज हम मनाएंगे 23 मार्च, लेकिन उसमें जो अहम चीज़ है, अभी जो आर्मी चीफ ने भी बयान दिया है, वो ये कि घर को ठीक करना है। तो हमारा घर ठीक नहीं है। हम 70 साल से यही रो रहे हैं कि हमारा घर ठीक नहीं है, हमारे यहाँ मुनासिब आज़ादियाँ नहीं हैं, हमारे यहाँ वोट को वो एहतराम नहीं है असल है जो हम चाहते हैं, जो इसके लिए हमारा ख्वाब था, या जो जमहूरियत डेमोक्रेसी हमारे यहाँ होनी चाहिए, तमाम खित्तों को, तमाम इलाकों को, ख़ास तौर पर चारों सूबों के अवाम को जो जमहूरी आज़ादियाँ हासिल होनी चाहिए, वो नहीं है। हम उसके लिए रो रहे हैं।
ये बहुत ही बुरी सूरत हाल है। एक तरफ हमारा बड़ा दिन है कि हम वो मनाते हैं कि एक साथ है, दूसरी तरफ ये है कि हम अभी और सफ़र आगे करना है और बेहतरी की तरफ सफ़र करना है। तो पहले घर ठीक करें, फिर हम पड़ोसियों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखें। अच्छा, क्या समझते हैं कि 2021 में चूँकि हम कदम रख चुके हैं, तो हमारे पास, हमारी आवाम के पास कौन कौन से ऐसी आज़ादी है जो उनको मैसर नहीं, या कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जिसके उनको निकालना चाहिए? आज़ादी का तस्वर बहुत वसी है। अगर उसको देखा जाए तो एक तरफ से तो हमारे यहाँ जो छोटे सूबों में जो आवाज़ उठ रही है कि हमें मुनासिब सूबाई खुद मुख्तारी नहीं है, हालांकि 18वीं तरमीम के बाद कुछ बेहतरी आई है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। मसलन सिंध के हवाले से अभी चल रहा है कि ये 3 हेल्थ के अदारे हैं बड़े, जो है दिल का वार्ड है, जना अस्पताल है, या वो बच्चों का जो स्पेशल वो है यूनिट है, तो ये तीनों सूबे के हवाले होने चाहिए। और सूबे ने अच्छे तरीके से संभाला भी, उसको बेहतर किया भी, बजट भी दिया, लेकिन वफाक उस पर बज़िद है कि ये हम दें। हमारे यहाँ मरकज़ियत का तस्वर ज़्यादा है। वफाक को मरकज़ियत से थोड़ी जान छुड़ानी चाहिए, थोड़ा सूबों पर एतमाद करना चाहिए। अब 72 साल हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो अब उन पर एतमाद करना चाहिए कि वो बेहतर पॉलिसियाँ देंगे और बेहतर आज़ादी को एंजॉय करेंगे, तो वो करना चाहिए। दूसरे हमारे यहाँ जो आज़ादी के मसाइल हैं, मसलन ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन आज भी जो हर फील्ड है उसमें बराबरी के लिए कोशा हैं, जदोजहद कर रही हैं, लेकिन उनको बराबर न वेज मिल रहा है और बराबर उजरत मिल रही है, और न ही हमारे यहाँ मुआशरे में, कल्चर में हमारे यहाँ इतनी बर्दाश्त है कि हम ख़वातीन को बराबर की आज़ादी दे सकें। तो ये इश्यूज़ बहुत सारे हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक है, खुदा का शुक्र है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम मिसेज़ राफ़िया अनवर है। अच्छा, मिसेज़ राफ़िया अनवर, ये बताना चाहेंगी कि 23 मार्च क्या है? 23 मार्च जो है, ये 23 मार्च को करारदाद जो थी वो मंजूर हुई थी और एक अलग मुल्क का मुतालबा किया गया था जो कि मंजूर किया गया। इसलिए हम हमेशा उसकी याद में ये 23 मार्च मनाते हैं। तो हम आज़ाद हैं इस मुल्क में, खुदा का बड़ा शुक्र है। और 23 मार्च के हवाले से हमारी आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी 23 मार्च के हवाले से कि तमाम लोगों से मैं अपील करती हूँ कि अमन जो है हमारे मुल्क में होना चाहिए, और रिक्वेस्ट करती हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि महंगाई को प्लीज़ 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 कंट्रोल किया जाए। लोग यंग्स हो के नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? बुशरा। बुशरा, ये बताएंगी 23 मार्च क्या है? हमारा इतिहास है, मतलब जिसके ऊपर हमने पाकिस्तान हासिल किया। 23 मार्च मौलाना फजलुल हक ने एक तहरीक पेश की थी जो कि लाहौर मीनार पाकिस्तान पे हुई थी, तो उस मिंटो पार्क पे हुई थी। तो उसके बिहाफ पे कि हमने पाकिस्तान अलहदा वतन चाहिए, हमारे मुसलमानों के लिए ये एक अलहदा मुल्क होना चाहिए जिसमें हमें मुश्किलात ना हो, हिंदुओं से हमें एक अलहदा सेपरेट मुल्क चाहिए। कुछ यंग जनरेशन को मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आप ख़ुद यंग हो, तो क्या समझती हो कि हमारी यंग जनरेशन में किस चीज़ की कमी है कि अगर वो चीज़ कमी पूरी हो जाए तो हमारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा? अक्ल की। अक्ल की? तो वो तो ठोकरों से हासिल होती है, इसके अलावा? नहीं, लाजमी नहीं कि ठोकरों से हासिल हो। अल्लाह ताला ने अपना दिमाग दिया, उसको इस्तेमाल करने के लिए दिया, पटखने के लिए नहीं दिया। ठीक है। और एजुकेशन के हवाले से कुछ कहना चाहोगे? टॉक्सिक चीज़ों से परहेज़ करें और एजुकेशन हासिल करें, और प्लीज़ हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो भी अच्छे इदारे बनाएं जहाँ पे पॉलिटिक्स ना हो। जी, तो नाजरीन, आपने सुना कि मुख्तलिफ़ लोगों ने करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च के हवाले से अपनी राय दी। बहुत से लोगों ने हमें मनफी पहलू भी दिखाए, बहुत से हमें पॉजिटिव पहलू भी मिले। तो आपने जाना कि 23 मार्च क्या है, 23 मार्च के दिन कौन सी करारदाद मंजूर हुई, किस मकासद के तहत ये करारदाद रखी गई और मंजूर की गई। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान नरगिस मेमन को। अल्लाह हाफ़िज़।